So dear children, you are most welcome to my today's class. Yesterday I taught you first lesson of your English grammar book, that is Grammar Hive, and today I am going to make you do the exercises of this lesson. First exercise of chapter 1 is arrange the following jumbled words to make sentences. नीचे लिखे जम्बल्ड वर्ड को सेंटेंस बनाने के लिए अरेंज करिए, यानी अरेंज करके सुटेबल सेंटेंस बनाइए। तो फर्स्ट जो जम्बल वर्ड का जो ग्रुप है वो है इंडिया इज कोलकाता क्लब द ओल्डेस्ट इन स्विमिंग। तो इसका आंसर देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कोलकाता क्लब इज़ द ओल्डेस्ट स्विमिंग क्लब इन इंडिया। ये आपका आंसर है। मैं टिक मार्क लगा दे रहा हूँ आपकी आइडेंटिटी के लिए। एंड द सेकेंड जो जम्बल वर्ड्स हैं, इंडोर सिंस चिल्ड्रन द डे वाज अ हॉट प्लेड इट। आंसर ऑफ these jumble words is since it was a hot day the children played indoor। चूँकि दिन गर्म था इसलिए बच्चों ने इंडोर खेला। इस तरह should not the poor ill treated be, ये जम्बल वर्ड हैं, इनका सेंटेंस बनाया है the poor should not be ill treated। and fourth is help great Sahil Bithai pleasure will। Answer is I will help Sahil with great pleasure। And question number 5 is system Jupiter solar planet largest in the is the। Jupiter is the largest planet in the solar system। इसका आंसर ये है 5th का। So children, now see the question number 6। mother the obey his does why not। इसका आंसर होगा the boy does not obey his mother। The boy does not obey his mother। And question number 2 is today done has not homework her Rasika। Answer is Rasika has not done her homework today। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। And question number 3 is enemy surrender we not compel the two did। Answer is we did not compel the enemy to surrender। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 it means our answer is correct। sight is terrifying a was। answer is house, no, answer will be
It was a terrifying sight. यह एक डरावना दृश्य था. It was a terrifying sight. And question number 10 is house near mall my huge is shopping there. So there is a huge shopping mall. Answer is there is a huge shopping mall near my house. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it's your answer. There is a huge shopping mall near my house. So dear children, please write down the answer. Now I am going to start exercise B. Encircle the subject in these sentences. I have written 9 sentences here and you will have to encircle the subject in these sentences. इन sentences में आपको subject को encircle करना होगा. जो subject होगा इस sentence में वहाँ आप circle लगा देंगे. तो देखिए sentence है pond water is not fit to drink. तालाब का पानी पीने के लिए ठीक नहीं है. तो अगर इसमें हम क्वेश्चन करें कि वाट वाटर इज नॉट फिट टू ड्रिंक, किसका पानी पीने के लिए ठीक नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? आंसर विल बी pond water. So pond water is subject here. If we put up question what and who with the verb, then we get the answer of the subject. तो सब्जेक्ट का आंसर पाने के लिए हम who या what के साथ वर्ब लगा के क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आंसर मिल जाता है. तो दिस बुक हैज़ गुड रेसिपी. दिस बुक हैज़ गुड रेसिपी. इस बुक में अच्छी रेसिपी है. तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इन विच बुक हैज़ गुड रेसिपी. विच बुक, कौन से बुक? तो दिस बुक. So this book is subject in this sentence. Yoga is necessary for good health. What is necessary for good health? Yoga. So yoga is the subject in this sentence. And in fourth sentence, many Indians are pure vegetarians. Who are pure vegetarians? So answer is many Indians. So many Indians is subject in this sentence. Okay, and in sentence fifth, the fox looked at the piece of cheese greedily. लोमड़ी ने चीज़ के टुकड़े पे greedily लालच से देखा. तो who looked at the piece of cheese greedily? किसने चीज़ के टुकड़े को लालचीपन से देखा? तो आंसर इज द फॉक्स. सो द फॉक्स इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. मिस्टर लाल इज ए बिजनेसमैन. हु इज ए बिजनेसमैन? क्वेश्चन इज हु इज ए बिजनेसमैन. तो आंसर इज द मिस्टर लाल. सो मिस्टर लाल इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. एंड इन सेंटेंस 7, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी. आप मेरी मदद करने में कितने दयालु हैं, कितनी दयालुता से मेरी मदद करते हैं. वी कैन से दिस सेंटेंस इज लाइक दिस. यू आर टू काइंड टू हेल्प मी. आप मेरी मदद करने बड़ी दयालुता से करते हैं. आप मेरी मदद करने में बहुत दयालु है. इसको भी इस तरह से कह सकते हैं. तो हु इज़ काइंड टू हेल्प मी? तो यू. आंसर इज यू. सो यू इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. एंड इन
सेंटेंस एट द स्टूडेंट डू नॉट लिसन टू दियर टीचर्स, स्टूडेंट अपने टीचर की बात नहीं सुनते हैं। तो हु डू नॉट लिसन टू दियर टीचर, अपने टीचर की बात कौन नहीं सुनते हैं? तो आंसर इज द स्टूडेंट्स। सो द स्टूडेंट्स इज सब्जेक्ट हियर। एंड इन सेंटेंस 9, इन द मिडिल ऑफ द जंगल वाज अ पॉन्ड, जंगल के बीच में एक तालाब था। व्हाट वाज इन द मिडिल ऑफ द जंगल? तो आंसर इज अ pond. A pond is subject in this subject, in this sentence. It is not necessary that subject comes in the beginning of all sentences. कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सारे सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आवे। Sometimes sentences may come in the middle or at the end of a sentence also. So students, now see the sentence 10th. What a splendid ship the Titanic was. Titanic कितना शानदार जहाज थी। This is exclamatory sentence. So we have to show the feeling of wonder. हमें आश्चर्य की फीलिंग शो करना है। हम ऐसे बोलेंगे इसको भाषा से कि टिटैनिक कितना शानदार जहाज थी। एंड इन दिस सेंटेंस व्हाट ए स्प्लेंडिड शिप द टिटैनिक वाज, अगर इसको हम मैटिव बनाएं तो इस तरह से कहेंगे कि टिटैनिक वाज टू स्प्लेंडिड, टिटैनिक वाज सो स्प्लेंडिड शिप। सो आंसर इन दिस क्वेश्चन इज टिटैनिक, द टिटैनिक। सो अगर हम क्वेश्चन करें कि विच वाज a splendid ship या which was two splendid ship, then answer will be the Titanic. So the Titanic is the subject in this sentence. Dear students, now I start the exercise C. C is identify the kinds of sentences. Sentences के kind को, उनके प्रकार को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए। सेंटेंस के प्रकार को पहचानिए। विच टाइप ऑफ सेंटेंसेज दोज आर। आई एम गोइंग टू राइट सेंटेंसेज। मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दिए गए सेंटेंस किस तरह के हैं। तो सेंटेंस फर्स्ट इज हाउ जुडिशियस किंग विक्रमादित्य, हाउ judiciously King Vikramaditya ruled. King Vikramaditya ruled. So now students, I am going to make you understand the exercise C, that is identify the kinds of sentences. Sentences के kinds को, प्रकार को पहचानना है कि which type of sentences the given sentences are. ये दिए हुए सेंटेंस की तरह के सेंटेंस हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ जुडिशियसली किंग विक्रमादित्य रूल्ड। राजा विक्रमादित्य कितना न्यायपूर्ण ढंग से शासन करते थे। तो बताइए किस ढंग का? हाउ जुडिशियसली किंग विक्रमादित्य रूल्ड। राजा विक्रमादित्य कितना न्यायपूर्वक शासन करते थे। देखिए यहाँ पे स्ट्रांग फीलिंग है, एम्फेसाइज किया गया कितना न्यायपूर्वक शासन करते थे। आवाज़ का एम्फेसाइज करने से पता चलता है कि इसमें क्या है, एक मन के है ना फीलिंग को व्यक्त किया जा रहा है। सो दिस सेंटेंस आप देख भी सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस विच काइंड ऑफ मार्क इज पुट अप, किस तरह का मार्क पुट अप किया गया है
अब देख सकते हैं यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इस मार्क से ये क्लियर हो जा रहा है कि दिस सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस का काइंड तो अगर एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रकार तो आप केवल उसके साइन को देख के बता सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी है कि इंटरोगेटिव है। हाँ, रह गई बात कि फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप क्या होता है? असर्टिव के लिए भी यूज होता है और इंपरेटिव के लिए भी यूज होता है। तो उसमें थोड़ा सा अंतर करना होगा। तो इसलिए केवल ये मार्क देखिए बता रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए है ना, वी आर श्योर दैट दिस सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड सेकेंड नंबर 2 इज ओपन द डोर। ओपन द डोर इन दिस सेंटेंस, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप हैज़ बीन पुट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप रखा गया है। और देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू, वो हिडन है। ओपन द डोर मीन्स यू ओपन द डोर। तो यू इज द सब्जेक्ट विच इज़ हिडन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में यू छिपा हुआ है, इसलिए ये कमांड है। कमांड को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमारा आपका ये हो गया हम लोग का इम्परेटिव। यहाँ पे इम्परेटिव लिख दीजिए, इम्परेटिव। ये हमारा क्या था? एक्सक्लामेटरी। एंड नाउ वी सी द सेंटेंस नंबर 3। हु बिल्ड द ताजमहल? ताजमहल किसने बनवाया? इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये क्लियर हो जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया है, ताजमहल किसने बनवाया। और आप देख सकते हैं यहाँ, यू कैन सी क्लियरली दैट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस अ क्वेश्चन मार्क हैज़ बीन पुट। क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, इसलिए ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पाब्लो पिकासो वाज अ ग्रेट पेंटर। पाब्लो पिकासो एक महान पेंटर थे, महान चित्रकार थे। इससे देखिए इस सेंटेंस को बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल नॉर्मली, सिंपली कह दिया गया है। दिस सेंटेंस मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट, सो दिस सेंटेंस इज असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, मैंने बताया। इंटरोगेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक अफर्मेटिव भी होता है, निगेटिव होता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस का ये अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तरह से द बस डज नॉट स्टॉप हियर। बस यहाँ नहीं रुकती है। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट है। सो दिस सेंटेंस इज आल्सो एन असर्टिव सेंटेंस, बट दिस इज निगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों मिलके असर्टिव कहे जाते हैं। तो ये क्या है? असर्टिव तो है, नो डाउट इट इज असर्टिव बट निगेटिव। असर्टिव का कैसा सेंटेंस है? निगेटिव है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस 6। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिंपल स्टेटमेंट है। बात ये सिंपली कह दी गई है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। न तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, न तो इसमें क्या है स्ट्रांग फीलिंग व्यक्त की गई है मन की। सिंपली ये सेंटेंस कह दिया गया, सिंपल स्टेटमेंट है। इट मीन्स ये भी असर्टिव है। असर्टिव का क्या है? अफर्मेटिव। असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। और इन सेंटेंस 7 हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। अब इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। आप कितनी दयालुता से मेरी मदद करते हैं। आप कितने दयालुता से मेरी मदद करते हैं।
यहाँ पे देखिए मन की स्ट्रांग फीलिंग को व्यक्त किया गया है, तो ये हार्ट की स्ट्रांग फीलिंग इसलिए। और देखिए जो मार्क है लास्ट में, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी शो कर रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एंड क्वेश्चन 8 में देखते हैं, द स्टूडेंट्स डू नॉट लिसन टू दियर टीचर, स्टूडेंट्स अपने अध्यापक की बात को नहीं सुनते हैं। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये असर्टिव है, लेकिन इसमें ये स्टेटमेंट का निगेशन किया गया है, नहीं सुनते हैं, इसलिए असर्टिव का ये क्या है, असर्टिव तो है बट निगेटिव टाइप ऑफ असर्टिव, असर्टिव है ये निगेटिव। एंड इन सेंटेंस 9, वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग द वैकेशन, वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग द वैकेशन, आप वैकेशन में छुट्टियों में कहाँ गए थे, या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि ये मार्क जो है लास्ट में पुटअप किया गया है, ये भी क्लियर कर दे रहा है, स्पष्ट कर दे रहा है कि दिस सेंटेंस इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक है। तो आइए हम लिख देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको आप क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया सारे सेंटेंसेस को। हु बिल्ड द ताज, इसको हमने लिखा था क्या, इंटरोगेटिव समझाया तो था, लिखा नहीं यहाँ पे, ये कमा इंपरेटिव हो गया, सब बाकी सब है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप टुडेज लेसन, आई विल मीट यू tomorrow. Till then, thank you, bye bye, very thank to you.